Good day everyone. Myself Tripti Mishra. Today we are going to discuss NCERT Class 8th Science Chapter 1 Crop Production and Management. Here today's video we will discuss the solution of exercise questions. First question is, select the correct word from the following list and fill in the blanks. The words which is given is float, water, crop, nutrients, preparation. Then first fill up is, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. The correct answer is crop. एक ही तरीके के पौधे जो उगाए जाते हैं लार्ज स्केल पर वो कहलाते हैं क्रॉप. बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. करेक्ट आंसर इज प्रिपरेशन. खेती का पहला स्टेप जो है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. देन सी, डैमेज्ड सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर. करेक्ट आंसर इज फ्लोट. डैमेज्ड सीड जो है वो पानी में उनमें पानी मिलाने पर वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं. डी, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Correct answer is nutrient and water. फसल को बोने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश की, न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की और पानी की आवश्यकता होती है. Now next question number 2. Match items in column A with those in column B. Column A के items को column B के items से match करना है. खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप के हमें examples देने हैं. So the correct answer is paddy and maize. Rabi crop. The correct examples of Rabi crop is wheat, gram and pea. D answer is correct. Then third, chemical fertilizers. Chemical fertilizers are urea and superphosphate. That is chemical fertilizers. Then organic manure. Organic manures are animal excreta, cow dung, urine and plant waste. Now question number 3. Give 2 examples of each. Already these examples we have matched in question number 2 also. So here we can give the examples of kharif crop, paddy, maize, soybean, groundnut and cotton. Rabi crop, wheat, gram, pea, mustard, etc. are the examples of Rabi crop. Now question number 4. Write a paragraph in your own words on each of the following. A. Preparation of soil. B. Sowing. C. Weeding. And D. Threshing. So first we will write the short note on preparation of soil. The preparation of soil in the first step before growing a crop. फसल को बोने से पहले फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है या काम है खेती का, वो है मिट्टी को ढीला करना. This allows the root to penetrate deep into the soil. इससे फसल की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक जा पाती हैं. The loosened soil help the growth of earthworms and microbes which are friends of the farmer and add
ह्यूमस टू इट। लूजन सॉइल मदद करती है अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ में, जो कि फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। Also, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil on the top so that plants can use these nutrients. टर्निंग और लूजनिंग, मिट्टी को टर्निंग और लूजनिंग करने की वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है और प्लांट को इजीली न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ बी इज सोइंग। सोइंग मीन्स बीज का बोना। सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बीज को बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के बीजों को सेलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। गुड क्वालिटी सीड एक अच्छी वेराइटी वाले साफ और स्वस्थ बीज होते हैं। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैनुअली। बीजों को मैनुअली हाथ से बोया जा सकता है या सीड ड्रिल की सहायता से बोया जा सकता है। नेक्स्ट इज वीडिंग। वीडिंग आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन along with crop, and removal of weed is known as weeding. वीड्स जो हैं वो ऐसे अनवांटेड प्लांट हैं जो फसल के साथ स्वतः ही उगाते हैं और इनको निकालना, फसल में से इन्हें निकाल देना वीडिंग कहलाता है। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और वाटर के लिए, सभी के लिए फसल के साथ compete करते हैं। So weeds can be removed either manually by using tools like खुरपी or by using weedicides like 2,4-D। वीड्स को हम मैनुअली हाथ से खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं या फिर कुछ वीडीसाइड्स, कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं, जैसे कि 2,4-D एक ऐसा ही केमिकल है, उसकी सहायता से भी, उसका छिड़काव करके भी हम वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनका खेतों में स्प्रे किया जाता है वीड्स को ख़त्म करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज थ्रेसिंग। The process of separation of the grains from the chaff is called threshing. अनाज के दानों को उसके चाप से, भूसे से अलग करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. ये एक मशीन की सहायता से किया जाता है जिसे कंबाइन कहा जाता है, जिसमें कि कंबाइन रूप से हार्वेस्टर और थ्रेशर इंक्लूडेड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। एक्सप्लेन करिए मैन्योर फर्टिलाइजर्स से किस तरह डिफरेंट है, भिन्न है। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर एज फॉलोज। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच मेन डिफरेंस इस प्रकार हैं। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। फर्स्ट, ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक सॉल्ट है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues। जबकि मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से, ह्यूमन वेस्ट के डिकम्पोजिशन से और प्लांट रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन से बनता है। सेकेंड डिफरेंस, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर खेतों में बनाया जाता है। थर्ड, ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर से मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं मिलता है। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि मैन्योर से सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस मिलता है।
Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. फर्टिलाइजर्स में बहुत अधिक मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में NPK भी कहते हैं. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर में अगर कंपेयर करें फर्टिलाइजर से तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कुछ कम होती है. सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज इरिगेशन? Describe two methods of irrigation which conserve water. सिंचाई करना क्या है और दो मेथड्स ऐसे डिस्क्राइब करने हैं जिनमें कि वाटर का कंजर्वेशन हो, जल का संरक्षण हो, पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो. सो आंसर इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. अलग अलग समय अंतराल पर फसल को पानी उपलब्ध कराना इरिगेशन कहलाता है. द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज. जल संरक्षण के साथ में पौधों को पानी उपलब्ध कराने के इरिगेशन के दो मेथड हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. फर्स्ट, स्प्रिंकलर सिस्टम. अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. इसमें परपेंडिकुलर पाइपलाइंस के ऊपर पूरे खेत में परपेंडिकुलर पाइपलाइंस रेगुलर इंटरवल्स पर लगा दिए जाते हैं और उनके टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स होते हैं जो चारों दिशाओं में घूमते हुए पानी का छिड़काव करते हैं. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. जब पानी को एक पंप की सहायता से पाइपलाइंस में भेजा जाता है तो ये नोजल्स तक पहुंचता है और चारों दिशाओं में पानी का छिड़काव होता है. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ये इस तरह से फसल के ऊपर छिड़काव होता है जैसे रेन हो रही हो, वर्षा हो रही हो. नाउ नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट. इस सिस्टम में पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों तक जाता है. इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. ये फ्रूट प्लांट्स को गार्डन्स में और ट्रीज को पानी देने का बेस्ट टेक्निक है. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. इस टेक्निक में पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है क्योंकि पानी की आवश्यकता पौधे की जड़ों को ही होती है. पानी का एब्जॉर्प्शन जड़ें ही करती हैं. इट इज़ ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. ये मैथड ड्रिप सिस्टम जो है वो ऐसे इलाकों में जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है वहाँ पे एक वरदान है. क्वेश्चन नंबर 7. इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन? डिस्कस. अगर वीट को, गेहूं को खरीफ सीजन में बोया जाए तो क्या होगा, डिस्कस करिए. आप जानते हैं वीट जो है वो एक रबी क्रॉप है. वीट इज ए रबी क्रॉप. Hence, it requires cold climatic condition to be grown properly. इसलिए इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए कोल्ड, ठंडा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है. If it is sown in खरीफ सीजन, अगर इसे खरीफ सीजन में बोया जाता है, it will not grow or may get destroyed due to excessive रेन इन द खरीफ सीजन. या तो ये पूरे से उगेगा ही नहीं, यह बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा क्योंकि खरीफ सीजन में एक्सेसिव रेन होती है जिसके लिए ये एडेप्टिव नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड. एक्सप्लेन करें कि अगर कंटिन्यूअस प्लांटेशन किया जाता है, लगातार पौधे या फसल बोई जाती रहती है खेत पे, तो उससे मिट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट
पड़ता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, मिट्टी फसल को मिनरल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये न्यूट्रिएंट्स पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, अगर किसी खेत में लगातार फसल बोई जाती है तो उस फसल की वजह से किसी निश्चित न्यूट्रिएंट की मिट्टी के अंदर कमी हो जाती है। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, इसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर टू द सॉइल, और फिर इस मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है सॉइल के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या है, खरपतवार क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। द अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop are called weeds, वो अवांछनीय पौधे जो कि नेचुरल तरीके से स्वतः ही फसल के साथ उगाते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं। देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल दियर ग्रोथ, यहाँ बहुत सारे तरीके हैं वीड्स को रिमूव करने के और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल्स करने के। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग, या तो इन्हें अपरूटिंग और कटिंग के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, इन्हें काट दिया जाए या इन्हें जड़ सहित उखाड़ दिया जाए। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ऐसा हमें मैनुअली करना होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एक खुरपी, ये एक खुरपी की हेल्प से भी किया जा सकता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, वीड्स कुछ सर्टेन केमिकल्स की हेल्प से भी कंट्रोल किए जाते हैं और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडीसाइड्स, इन केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहा जाता है। लाइक 2,4-D, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडीसाइड इज 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, ये वीड्स को खत्म करने के लिए फसल में इनका छिड़काव किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10। Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. Sugarcane के crop production के लिए इस चार्ट को हमें अरेंज करना है। Then first is sending crop to sugar factory, irrigation, harvesting, sowing, preparation of soil and ploughing the field, then manuring. So first will be number 5, preparation of soil. Then after preparing the soil, we will go to plough the field, खेत को जोतेंगे। इसके बाद sowing, बीज को बोया जाएगा। बीज बोने के बाद हमें पानी देना होगा, that is called irrigation. एंड देन आफ्टर इरिगेशन फसल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो उसके लिए हमें मैन्योर देना होगा, दैट इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इस तरह से जब फसल बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो हमें उसे काटना होगा, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एंड एट द लास्ट सेंडिंग द क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। सो वी कैन डू इट लाइक दिस सीक्वेंस. So the correct order is 5, 6, 4, 7, 2, 3, 1. Question number 11 is complete the following word puzzle with the help of clues given below. Downside we have to write providing water to the crops. फसल को पानी प्रोवाइड करवाना, इसको हम बोलते हैं इरिगेशन. So the correct answer will be irrigation. Then second, keeping crops grains for a
long time under proper condition. क्रॉप के अनाज को, फसल के अनाज को लंबे समय तक प्रॉपर कंडीशन में रखने को हम बोलते हैं स्टोरेज. सो द करेक्ट आंसर विल बी स्टोरेज. नेक्स्ट 5 number downside. Certain plants of the same kind grown on a large scale. सेम काइंड के प्लांट्स को लार्ज स्केल पर बोया जाना कहलाता है क्रॉप. Now across 3 number, a machine used for cutting the matured crop. एक मशीन जो मैच्योर्ड क्रॉप को काटने के लिए काम में ली जाती है, that is called harvester. Then fourth, a rabi crop that is also one of the pulses. एक रबी क्रॉप जो कि दाल भी है, that is gram. GRAM. The word is given G at 4 number, so it will be gram. Now last is a process of separating the grain from chaff. That is called winnowing. The word is also given W, so the process is called winnowing. So it was all about the exercise questions of NCERT book. So students, like the video, share the video with your friends and subscribe my YouTube channel if it is beneficial for you, so that you will get the notification as I will upload the next video. Thank you.